یہ ان سے پوچھئے کہ جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں، یہ ان سے پوچھئے کہ جن کو اللہ تعالی نے اولادوں سے محروم رکھا، وہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ان کے آنگن میں بچوں کا شور نہیں، ان کے آنگن میں بچوں کی شرارتیں نہیں ہیں، ان کے آنگن میں بچوں کی اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھ کے دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان اولادوں کو خوشخبری کے طور پر ذکر کیا، بشارت کے طور پر، اور کہیں رب العالمین نے ان اولادوں کو دنیا کی زینت کے طور پر ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب اولادیں دیں تو اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے حوالے سے جب بشارت دینا چاہی تو قرآن نے وہ منظر کشی کی ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی خوشخبری کے طور پر اللہ تعالی نے ان اولادوں کا ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جب اولاد دی تو اللہ نے فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں، اور ایسا بیٹا، ایسا نام ہم نے اس بچے کا رکھا ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اس نام پر آج تک کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ۔ انا نبشرک، خوشخبری۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اگرچہ اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن یہاں پر رب العالمین نے اس مال کو اور ان اولادوں کو زینت کے طور پر، دنیا کی زینت کے طور پر قرار دیا، اور یہ دنیا کی زینت ہے۔ ماں باپ کے حقوق سے قبل اولادوں کے حقوق جو ہیں وہ میں نے اور آپ نے ادا کرنے ہیں۔ جب میں اور آپ اپنی اولادوں کے حقوق ادا کریں گے تو یہ اولادیں میرا اور آپ کا حق دیں۔ آپ نے ابھی سنا نا، بچوں کو نصیحت کی کہ بیٹے تمہارے کچھ حقوق ہیں، ہم نے تمہاری زندگی میں وہ سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک حق وہ تھا تمہارا جو تمہاری پیدائش سے قبل تھا، وہ بھی ہم نے ادا کیا ہے، وہ تمہاری ماں کی صورت میں تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم جب اپنے شادی بیاہ کا انتخاب کریں یا ہم اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیویوں کا انتخاب، یا اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے شوہروں کا انتخاب کریں تو سب سے پہلی اہمیت اگر ہم نے کسی کو دینی ہے تو وہ ان میں دینداری کو دیکھنا، دینداری کو دیکھنا، ان کی اخلاقیات۔ جب ہم دنیا کو مد نظر رکھیں گے تو دنیا تو مل جائے گی، لیکن جب آخرت کو مد نظر رکھیں گے تو اللہ آخرت تو دے گا، لیکن دنیا بھی اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے گا۔ ہمارا ہدف آخرت ہو۔ ہم جب اپنی بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے شادی بیاہ اور نکاح کی کوئی بات کریں تو لڑکے کو دیکھنے کے لیے اس کے کارخانے جاتے ہیں، اس کی فیکٹری جاتے ہیں، اس کے دکان میں جاتے ہیں، اس کی گیدرنگ میں جا کے لڑکے کی پوری معلومات لیتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتا ہے، جہاں وہ اٹھتا ہے، یہ ساری معلومات لیتے ہیں۔ لیکن معلومات لینے کے لیے اگر کوئی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی تو وہ اللہ کے گھر اور اس کی مسجدیں نظر نہیں آتی۔ ہم مسجدوں میں جا کے چیک کریں کہ جس کو ہم اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں، جن کو ہم اپنا بہنوئی بنانا چاہتے ہیں،
इस मेरी बेटी, इस बहन के जरिए जो औलादें आगे चल रही है, जिस शौहर का इंतखाब में और आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आया वो नमाजों के औकात में वो मस्जिदों में है या नहीं? आप दिन की नमाजों में हालात देखें, जायजा लें, और गाहे बगाहे जिस इलाके में वो रहता है कि जिसको आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं, आप उस इलाके में फजर की नमाज में जाके देखें कि ये नौजवान जो माल भी है, दौलत भी है, दुनिया की वसअतें और फरावानियां भी इसके पास है, ये फजर की नमाज में मस्जिद में हाजिरी देता है या नहीं? अगर मस्जिद में फजर की नमाज में ये हाजिरी देता है तो यकीनी इसके खानदान के अंदर दीन बाकी रहेगा। अगर ये फजर की नमाज अदा नहीं कर रहा तो इसकी नस्ल में दीन मुझे और आपको कल नजर नहीं आएगा। तहकीक करें, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। आने वाले दुनिया में पैदा होने वाले बच्चे जो बाद में दुनिया में आएंगे, उनके हुकूक में से एक बेहतरीन हक यह है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में एक बाप आता है और अपने बेटे की शिकायत करता है। कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा नाफरमान है, मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी नहीं मानता। हजरत अमीर उमर ने बेटे को बुलाया, मालूमात की कि तुम्हारे अब्बू शिकायत कर रहे हैं, ये बात सही है? कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं मुजरिम हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने बाप का भी बागी हूं, मैं अल्लाह का भी बागी हूं, लेकिन मुझसे कबल मेरे अब्बू से तो पूछिए, मेरी वालिदा का इंतखाब करते हुए मेरे बाबा ने किस औरत का इंतखाब किया था? मेरे अब्बू सारा दिन मेहनत, मजदूरी, काम काज, ये तमाम तर मामलात के हवाले से घर से बाहर होते हैं, और 12 घंटे और 24 घंटे अल्लाह अकबर जो मेरी तरबियत करती है वो मेरी माँ है। लेकिन जब मेरे अब्बू ने इंतखाब किया मेरी माँ का मेरी पैदाइश से पहले, तो ये इंतखाब उसका अच्छा नहीं था। वो एक दीनदार औरत नहीं, वो बेदीन औरत थी, उसका इस्लाम और दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। आज मेरे अब्बू ये कहते हैं, मुझसे उम्मीदें रखे हुए हैं, हालांकि तरबियत के हवाले से मेरे बाबा ने मेरे तरबियत के मामलात में वो मामला पूरा नहीं किया कि जो आज मेरे बाबा को, मेरे वालिद को मुझसे उम्मीदें हैं, कल अगर वो इन तमाम चीजों का ख्याल कर लेते माजी में, तो आज मेरी कैफियत ये नहीं होती, मेरे अब्बू को भी शिकायत नहीं होती। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम ला यासूनल्लाह मा अमरहुम वयफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह ने इंसान के लिए जन्नत बनाई या उसकी बदामालियों की वजह से जहन्नम को तैयार किया गए। अच्छे अमल करेगा, अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल करना गए, बुरे अमाल में जिंदगियां गुजारेगा तो अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की दहकती हुई आग को तैयार किया गए। रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए ईमान का दावा करने वालों, अपने आप को मोमिन और मुस्लिम कहलवाने वालों, ईमान का दावा करने वालों, कू अनफुसकुम, अपने आप को अल्लाह अकबर जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को ही नहीं बल्कि अपनी जुर्रियात को, अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाना गए। क्या मकसद है? आपने सिर्फ अपनी ही फिक्र नहीं करनी। अजाने हो रही है, अल्लाह अकबर, घर में बड़े मियां अपनी शलवार को ऐसे ऊपर की तरफ उड़सते हुए मस्जिद की तरफ जाते हुए नजर आते गए। अजान होती है, माँ बाप में से अल्लाह अकबर दादाजी भी, नाना जी भी, घर के सरपरस्त और बड़े भी अपने दांतों में मिसवाक मलते हुए मस्जिद की तरफ जाते हुए नजर आते गए। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तूने सिर्फ अपनी फिक्र की है। अल्लाह कहता है, कू अनफुसकुम
वअहलीकुम नारा। सिर्फ अपनी ही फिक्र नहीं करनी बल्कि अपनी औलादों की भी फिक्र करनी है। अपने बच्चों को मस्जिदों में लेकर आया करो, अपने बच्चों को मस्जिदों की रौनक बनाया करो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते गए, इस आयत के ज़िमन में मुफस्सिरीन ने अल्लाह के नबी की वो अहादीस जमा की गए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते गए, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, तुम्हारी जिम्मेदारी है उन्हें प्यार से, उन्हें मोहब्बत से, उन्हें दुनिया की लालचें दे के नमाज की तलकीन करनी है। मेरे बच्चों, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरे प्यारे नौनिहाल बच्चों, अल्लाहु अकबर, हमने अल्लाह की इबादत करनी है। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, हमने नमाजें अदा करनी है। नमाजों के लिए अल्लाह ने मस्जिदों को बनाने का हुक्म दिया गया। ये अल्लाह के घर गए, इन्हें हमने आबाद करना है। अपने बच्चों को 7 साल की उम्र से मैंने और आपने तालीम देनी है, तरबियत करनी है। अल्लाह अकबर। आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखिए, आपकी तालीमात को देखिए। प्यारे पैगंबर की तालीम यह कि बच्चों की पैदाइश से पहले अंबिया ने अल्लाह से दुआएं क्या की गए। अल्लाह अकबर। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अभी दुनिया में ये बच्चा आया नहीं, माँ के मादा में, माँ के अल्लाहु अकबर रहम में मादा ठहरा नहीं। अंबिया अल्लाह से दुआएं करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह औलाद तो चाहिए लेकिन नेकोकार औलाद अता फरमा दे। रब्बी हबली मिन लदुनका वलिया। अल्लाहु अकबर। मैं अपने खजानों से मेरा वली वारिस अता फरमा, लेकिन अल्लाह ने को हो। मैं आप क्या कहते हैं, कोई ऐसा वली मिल जाए जो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, जो मेरे कारोबार और मेरी बिजनेस को संभालने वाला हो, मेरी प्रॉपर्टी और मेरी जायदादों का वारिस बने। हम ये सोचते हैं, लेकिन अंबिया की सोच देखिए, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह ने औलाद अता फरमा। जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी। फिक्र देके अल्लाह अकबर रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रखे गए, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह मैं तेरा खलील हूँ, तूने मुझे अपना दोस्त बनाया है, मैं तेरा मुकर्रब हूँ, तेरी मेरी यारी उसी वक्त चल पाएगी। अल्लाह अकबर। जब तू मेरी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह अकबर। दुआ क्या मांगी। अल्लाह मैं अपने लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, मुझे ही नहीं बल्कि मेरी औलादों को भी नमाज का पाबंद बना दे। कौन दुआ कर रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज हमें अपनी औलादों की फिक्र नहीं है। हजरत इब्राहिम और हजरत जकरिया ने अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह अपना मेरा वली वारिस अपने खजानों से मुझे अता फरमा। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। और जब इन अंबिया को औलादों से नवाज दिया जाता था तो फिर अल्लाह अकबर वो उनको तालीम दिया करते थे, उनकी तरबियत किया करते थे, जीने के उसूल सिखाया करते थे। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह के हुकूक के हवाले से हो, हुकूकुल इबाद के हवाले से हो, अंबिया ने कोई भी कमी और कजी नहीं रखी और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, और मुझे ही नहीं बल्कि मेरी ज़ुर्रियात को भी नमाज का पाबंद बना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। और किस अंदाज में रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया। हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम के बेटे हैं। हजरत इस्माइल की सीरत का जब रब्बुल इज्जत ने कुरान में जिक्र किया तो रब्बुल आलमीन फरमाता है, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह। जिस तरह इब्राहिम अपने औलादों को नमाज का हुक्म करते थे, उसी तरह उनका बेटा इस्माइल भी अपनी औलादों को नमाज का हुक्म करता था। जब बच्चे सीखेंगे, जब बच्चे ऐसे माहौल में आंखें खोलेंगे,
अल्लाह उनकी अल्लाह अकबर बेहतरीन तालीम और तरबियत का आसमानों से मुझे और आपको हुक्म दे रहा है। तो यकीनी जब उन बच्चों का वक्त आएगा, हजरत इस्माइल के अंदर एक से एक बढ़कर खूबी थी जो रब्बुल आलमीन ने उनको अता फरमाई थी, लेकिन उन खूबियों में रब्बुल आलमीन को अजीम खूबी जो लगी है वो ये थी कि वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाह। इस्माइल में अगरचे पूरी खूबियां, जिंदगी उनकी खूबियों से भरी हुई थी, लेकिन उन खूबियों में अजीम खूबी ये थी कि वो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह ने बेटों से नवाजा है। अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूबल मौत इद क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत याकूब दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है जब उनकी मौत का वक्त आया, अपने तमाम बच्चों को हजरत याकूब ने अपने करीब बुलाया और कहते हैं मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे बेटों तुम किसकी इबादत करोगे, किसके आगे अपने माथों को झुकाओगे, यूं कहिए कि किसके नाम पर नजरो नियाज करोगे, किसको अपना सब कुछ मानते हुए इबादत की एक एक अदा को उसके लिए वक्त करोगे, महसूस करोगे। मेरे बेटे बताओ तो मेरे दुनिया से जाने के बाद किसकी इबादत करोगे। चूंकि हजरत याकूब अपनी जिंदगी में तालीम देते रहे, तरबियत करते रहे, रब की मारिफत करवाते रहे, इलाह का पहचान करवाते रहे, जिंदगी में आने के मकसद को अपने बच्चों में अल्लाह को अकबर रखते रहे। और जब दुनिया से जाते जाते पूछा किसकी इबादत करोगे, सारे बच्चों ने कहा नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइक। अब्बू जान आप दुनिया से चले जाएं, हम आपकी आपका सीखा हुआ सबक हमें याद है। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब का एक मकाम था, उनके आबाओ अजदाद में हजरत इब्राहिम थे, हजरत इस्माइल थे, हजरत इसहाक थे। सारे बच्चे ये कहते हैं अब्बू जान आप दुनिया से चले जाएं, अल्लाह अकबर, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके इलाह की इबादत करेंगे, हम आपके आबाओ अजदाद के इलाह और माबूद की इबादत करेंगे। वो आबाओ अजदाद के अंदर कौन है? इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अल्लाह अकबर। जो इब्राहीम का इलाह है, जो इस्माईल का इलाह है, जो इसहाक का इलाह है, जो आपका और आपके आबाओ अजदाद का इलाह है, ये सब के सब का इलाह अगर कोई है, इलाह वाहिदा, वो एक ही है जिसको अल्लाह कहा जाता है। अब्बू जान आप दुनिया से तशरीफ ले जाएं, अल्लाह की कसम हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। ये जब घुट्टियों में मैं और आप अपने बच्चों को बिठाएंगे तो यकीनी अल्लाह अकबर, ये बच्चे मेरी और आपकी आंखों की ठंडक ही मेरी जिंदगी में नहीं बनेंगे, मेरे और आपके मरने के बाद अल्लाह अकबर ये आपके लिए, मेरे लिए, अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए। और इन शुतर में बाहर छोड़ दिया, स्कूलों में हमने भेजा और इन बच्चों की फिक्र नहीं की, इनका पीछा नहीं किया, लोगों के सुपुर्द कर दिया। वहां किस किस्म की तालीम और तरबियत दी जा रही है, किस एजेंडे पर आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में काम हो रहा है। आज हमारे बच्चे मुल्हिद हो रहे, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, कोई खत्म नबूवत का इनकारी है, कोई अल्लाह अकबर परवेजियत की तरफ जा रहा है, कोई मुनकिरीन हदीस की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि हम अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में नहीं रखते। अव्वल तो तालीम हमने नहीं ली है, और अगर हमने तालीम ली है तो हमें सिर्फ अपनी मस्जिद, अपना मुसल्ला और अपनी नमाज नजर आती है, हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं होती। उठाएं इन बच्चों की तरबियत। ये छोटे बच्चे मासूम, इनको खुश करने के लिए मैं और आप इन बच्चों के लिए चीजें मुहैया करते हैं या नहीं? उनकी उम्रों के लिहाज से ये बच्चा पैदा होता है, रोता है तो उसके लिए जनाब फीडर लिया जाता है, रोता है तो उसके लिए चुसनी और निप्पल खरीदे जाते हैं, उसको चुप कराने के लिए छोटे हाथ से बजाने वाले झुंझुनों का इंतजाम मैं और आप करते हैं। अल्लाह अकबर। उनको झूला देने के लिए
वो बस किस्म किस्म के झूले, किस्म किस्म की गाड़ियां, किस्म किस्म के अल्लाह अकबर आलात उनके सामने मुहैया किए जाते हैं। और उसकी उम्र के लिहाज से ये बच्चा छोटा है, उसको चांद गाड़ी दी जाती है तो जिसके ऊपर 8 पहिए लगे हैं। इस बच्चे को उस गोल गाड़ी में बिठा देते हैं। ये बच्चा अभी खड़ा होना जानता नहीं है, अल्लाह अकबर सिर्फ पैर सीधे कर रहा है। हम उसकी उम्र के एतबार से अल्लाह अकबर चीजें मुहैया करते हैं। वो उस छोटी सी गाड़ी के ऊपर अपने आप को, बैलेंस को बराबर नहीं रख पाता, लेकिन वो पूरे घर में घूमता है। ये छोटा सा बच्चा मजीद बड़ा होता है, इसके लिए 3 पहियों वाली साइकिल का एहतमाम करते हैं। मजीद बड़ा होता है, 2 पहियों वाली और व्हील वाली गाड़ी इसके लिए मुहैया की जाती है। चूंकि अभी ये 2 पहियों वाली गाड़ी चला नहीं सकता, उसके लिए 2 सपोर्ट बराबर में दाएं बाएं होती है। छोटे छोटे टायर, ये इधर ना गिर जाए, ये इधर ना गिरे, उसके नुकसानात को सामने रखते हुए, उसकी उम्र के तकादे को सामने रखते हुए वो सारी चीजें मुहैया। जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो 2 टायरों वाली साइकिल की साइडों में जो सपोर्ट होती है उसको निकाल दिया जाता है। उम्र बढ़ रही है, बड़ी साइकिल उसको दी, मजीद उम्र बड़ी, मोटरसाइकिल का एहतमाम हो गया, मजीद उम्र बढ़ती है, वसाइल और असबाब के तहत हमने हैवी बाइक का उसके लिए इंतजाम कर दिया। मजीद ये बच्चा बड़ा हुआ, 4 व्हील उसको दे दी। अपने अपने वसाइल के मुताबिक मैंने और आपने उसको आसाइश मुराआत दी है। काश के बचपन के अंदर जहां मेरे तेरे घर में नमाज के लिए 4 फुट का एक मुसल्ला आया था, वहां 1.5 फुट का मुसल्ला इस बच्चे के लिए भी उसकी उम्र को सामने रखते हुए घर में लाया जाता। 1.5 फुट का मुसल्ला। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते, मर्दों के लिए नमाज मस्जिद में जरूरी है, औरतों के लिए बेहतरीन जगह अल्लाह अकबर उनके घर गए, वो घरों में नमाज अदा करें। लेकिन औरतें अगर मस्जिद में नमाज के लिए आना चाहती हैं तो उनको नमाज से रोका न जाए। सहाबा ने अल्लाह अकबर नाराजगी का एहतमाम और नाराजगियों को अल्लाह अकबर सामने लेकर आए। किस लिए लेकर आए? इसलिए कि जब औरतों को नमाज के लिए मस्जिद में आने से मना किया तो सहाबा गुस्से हो गए, अपने बच्चों के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एक अजीब एक अलग मसला गए। लेकिन अल्लाह अकबर प्यारे पैगंबर के दौर में मर्दों की नमाजें सफे बनती, औरतों की सफे बना करती थी, बच्चों की भी सफे बना करती थी। आज भी लिखने वालों ने लिखा, अगर हमारी मस्जिदों में बच्चों के शोर और गुल की आवाजें नहीं आ रही, अल्लाह अकबर समझ जाए हमारे बच्चों को कोई अगवा कर गया है। हमारी मस्जिदों में अगर बच्चा शोर कर दे, आवाज निकाले या मस्जिद में भागता दौड़ता हुआ नजर आ जाए, हम बच्चों को डांटते गए, बच्चों को मारते गए, मस्जिदों से भगा देते गए। लेकिन दाना लोगों ने कहा, मस्जिदों में अगर बच्चे नहीं आ रहे, शोरो गुल की आवाजें नहीं है, समझ जाओ हमारे बच्चे अगवा कर लिए गए हैं। किसने अगवा कर लिया? मोबाइल ने अगवा कर लिया। किसने अगवा कर लिया? गेम्स ने, कंप्यूटर ने, टीवी और बड़ी बड़ी एलसीडीओ ने। शैतान हमारे बच्चों को अगवा कर गया है। हम जब अपने बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत नहीं देंगे तो फिर जहां ये बच्चे जाएंगे वो उनको माहौल मिलेगा, ये बच्चे हमसे ही नहीं बल्कि अल्लाह के दीन से दूर हो जाएंगे। ये छोटी उम्र में बच्चों को कंट्रोल कीजिए। दुनिया में आते ही इन बच्चों के रोने पर मैं और आप वो म्यूजिक, वो मोबाइल्स इनके हाथों में दे रहे हैं जो मेरी और आपकी तबाह बर्बादी का सबब बना हुआ है। इनको लोरियां अगर देनी हो, अल्लाह अकबर, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत, सहाबा इकराम की तर्ज जिंदगी ये थी कि हमें तालीम दी गई है कि इन छोटे मासूम बच्चों को लोरियां भी देनी हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह की लोरियां दो, ला इलाहा इल्लल्लाह की लोरियां दो। इन बच्चों के सामने कलमा दोहराओ, कलमे के अल्फाज को गुनगुनाओ, कलमे की मानी मफहूम पोयम की सूरत में मेरे तेरे सामने मौजूद है। इन बच्चों को रोता हुआ देखो तो इसके सामने गुनगुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना सुकून उस बच्चे को मिलेगा, इतना इत्मीनान कल्ब का उसे हुसूल होगा। वो म्यूजिक का आदी नहीं
नहीं बनेगा, वो ढोल और तमाशों का आदी नहीं बनेगा, वो इस मोबाइल फितने का आदी नहीं बनेगा, बल्कि वो अल्लाह का कलाम का आदी हो जाएगा, वो कलमे का आदी हो जाएगा। आज अगर गुट्टियों में बिठा दिया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात में अल्लाह के अलावा न तेरा कोई माबूद है न मेरा कोई माबूद है, दुनिया में हर एक का माबूद अगर कोई है तो वो इलाह है, अल्लाह ही है। जिस तरह हजरत याकूब के बच्चों ने जवाब दिया था इलाहा का व इलाह आबाइक, हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन अल्लाह को अकबर मेरी तेरी औलादें अल्लाह की तौहीद पर रहेंगी। ये बचपन से मैंने आपने अपने बच्चों की घुट्टियों में बिठाना। हम ये कहते हैं अच्छा स्कूल अच्छी बात है, मना नहीं है, अच्छा लिबास अच्छी बात है, मेरी और आपकी ये जिम्मेदारियां हैं, अच्छा खाना अच्छा लुकमा अच्छी बात है, मेरी और आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इससे कई गुना बड़ी जिम्मेदारी मेरी और आपकी यह है अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छे वसाइल और असबाब का मुहैया करना। यह पैगंबर के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते अपने बच्चों को जब तुम दुनिया से जाने लगो ना, मरने लगो, अपने मरने से पहले अपने बच्चों को गनी करके मरो। ऐसा ना हो कि तुम दुनिया से चले जाओ और ये दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते रहे, ये बेकारी रहे, लोगों के टुकड़ों पे पलने पर ये मजबूर हो जाए और तुम्हारे बच्चे अपनी गुर्बत की वजह से अल्लाह अकबर वो गुनाह का इर्तिकाब तक करने पर मजबूर हो जाए। पैगंबर फरमाते हैं दुनिया से जाने से पहले वो प्लान करो अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में कि मरने के बाद तुम्हारे बच्चे लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं, झोलियां फैलाकर भीख ना मांगे। ये हमारी शरीयत ने हमें तालीम दी है, लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ दुनिया के पीछे लग जाएं। हमारी जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, दुनिया की फिक्र के साथ साथ आखिरत की फिक्र करनी। क्यों? पैगंबर ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, दुनिया का एक एक फर्द जो है मसूल है, अल्लाह ने उन्हें राई बनाया गए, एक एक फर्द को रब्बुल आलमीन ने मसूल बनाया गए, जिम्मेदार बनाया गए, और हर जिम्मेदार से अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करेगा। हर जिम्मेदार से अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, सवाल करेगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने आप लोगों में से हर एक को जिम्मेदार बनाया है, और दुनिया में अगर किसी को किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी अल्लाह अता करता है या किसी को किसी पर निगरान बनाता है तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह उस निगरान से उसकी जिम्मेदारियों और उसकी जो निगरानियां जिस पर थी, उसकी मामूर था, उसके बारे में अल्लाह पूछेगा। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करता हुआ दुनिया को छोड़कर जाएगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते उस जिम्मेदार और उस निगरान पर अल्लाह जन्नत को हराम कर देता है, जन्नत को हराम कर देता। एक इमाम है, उसकी जिम्मेदारी नमाज पढ़ाने की है, अगर वो नमाज के लिए नहीं आए, पूरा महीना उसने नमाजें पढ़ाई है, एक फजर की नमाज में अगर वो बेचारा मजबूरन नहीं आ सका, तूफान पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, मौसिन अगर 4 मिनट अजान लेट दे दे, आंख उसकी देर से खुली है, आप उसके ऊपर एक तूफानों का पहाड़ तोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर, आप सारी जिंदगी मस्जिद में नहीं आए, कभी कभी आने वालों में आपका शुमार है, या रमजान के आप नमाजी है, अल्लाह अकबर, लेकिन इमाम से मामूली सी गलती हो गई, ठीक है, इमाम की जिम्मेदारी है, मुअज्जिन की जिम्मेदारी है, खादिम सफाई में कोई कमी कोताही करता है, इंतजामिया उसे काम से निकाल देती है, अल्लाह अकबर, रब्बुल आलमीन ने भी अगर मुझे और आपको जिम्मेदारी दी, निगरान बनाया है, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे और आपसे पूछेगा, और जन्नत को अल्लाह ऐसे पर हराम कर देता। ये औलाद की जिम्मेदारियां हैं। अगर कोई सेठ है, उसकी जिम्मेदारी उसके बादशाह है, उसकी रियाया पर, अल्लाह अकबर, उसकी जिम्मेदारियां, ये सारे निजाम अल्लाह ने मुझे और आपको दिए हैं। याद रखिए, आज मैं घर में बड़ा होने का दावा करता हूं,
जब भाग दौड़ की बात आती है कि मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं घर का बड़ा हूं, मैं जिम्मेदार हूं, अल्लाह अकबर, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरे गुण गाओगे, मेरी बात मानोगे। घर में अगर बड़ा भाई भी है तो वो चौधरी बना हुआ फिरता है, उसकी बात को ना माना जाए तो वो नाराज हो जाता है। घर में खलफशार, इख्तिलाफ, लड़ाइयां, एक दूसरे का अदब, शफकत, सारी चीजों को अल्लाह अकबर रोन दिया जाता है। जब दुनिया की बात आती है तो मैं, लेकिन आखिरत के हवाले से कौन फिक्र करेगा? मां बाप की बच्चे नहीं मान रहे दुनियावी एतबार से, मुझे और आपको एक परेशानी लाहिक हो जाती है, लेकिन जब वो अल्लाह की नहीं मान रहे होते तो मुझे और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होती। क्यों? ये अलमिया क्यों है? फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। जनाब लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे गए, या बुनैया इम्तकु, अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है व इज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, देखो ख्याल करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। कभी मैंने और आपने अपने बच्चों को अपने करीब बिठा के प्यार मोहब्बत से ये दर्ज दिया, सिखाया कि बेटा अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा। अगर दुनिया वाले आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं तो सब्र कीजिए, इत्मीनान का मुजाहिरा कीजिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। आपका हक है, छोड़ दीजिए। अपने मिजाजों में नरमी रखिए, अपनी जबानों में शाइस्तगी लेकर आइए। जमीन पे कभी अकड़ के तुमने चलना नहीं है। कभी मैंने और आपने बच्चों को यह दर्ज दिया, घर में अगर कोई तूफान बदतमीजी होती है और बाहर वाले मेरे और आपकी तरफ कोई उंगलियां उठाते हैं या जबान दराजी करते हैं, मैं और आप अपने बच्चों को उनके साथ लड़ने के लिए, गालम गलोच, तूफान बदतमीजी के लिए अपने बच्चों को आमादा करता हो। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक इसलिए नहीं करना कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये इबादत अल्लाह का हक है, तुम अल्लाह के अलावा किसी और को दोगे, अल्लाह इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। या बुनैया इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। नसीहत कर रहे हैं अपने बच्चे को, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, लेकिन इस बात का भी ख्याल करना, अल्लाह अकबर, जिंदगी में जो भी अमल करो वो नेकी पर मुश्तमिल होना चाहिए, रब की रजा पर मुश्तमिल होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी के लम्हे लम्हे में अल्लाह की रजा मकसूद होना चाहिए। दुनिया में अगर तुम कोई जर्रा बराबर नेकी करोगे या जर्रा बराबर कोई बुराई करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, वो जमीनों में, आसमानों में कहीं भी हो, वो किसी बड़ी चट्टानों और पत्थरों के पीछे और गारों में छुप कर तुम गुनाह करोगे, कल क़यामत के दिन याति बिहल्लाह, तुम भी अल्लाह की अदालत में पेश किए जाओगे और तुम्हारी नेकी और तुम्हारा जुर्म भी अल्लाह की अदालत में लाया जाए। हमने बच्चों को बताया नहीं, हम बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते। या बुनैया अक़ीमिस सलाता, ऐ मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम करो। अंबिया की तालीम, नेक लोगों की तालीम, अल्लाह के मुकर्रब बंदों ने, अल्लाह अकबर, हमेशा अपने बच्चों को अपने घर में बिठा के समझाया है, उनको सीने से लगाया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को कैसे तालीम देते थे, अंदाजा है? अल्लाह के रसूल अपने बच्चों से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। हजरत फातिमा को कहा ना कि ये मेरा जिगर गोशा है, मेरी जान का टुकड़ा है। फातिमा के बतन से पैदा होने वाले बच्चों को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे अल्लाह अकबर बेटे हैं, ये जन्नत के फूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम उन दोनों नवासों को अपने करीब लाते, अल्लाह के महबूब उनके चेहरे, माथे, गालों का, रुखसारों का बोसा लेते, उनको अपने करीब लाके सूंघते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, और सूंघने के बाद कहते थे, अल्लाह अकबर, ये दोनों मेरे नवासे बच्चे, ये जन्नत के फूल हैं। मोहब्बत की अल्लाह के रसूल, प्यार किया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुझे और आपको मोहब्बत करना इन बच्चों से सिखाया। मैं और आप अपने बच्चों को गले लगाते हैं कभी? नहीं।
और आप और मैं उम्मीद ये रखें कि ये बच्चे मुझे आके गले लगाएंगे, ये हमारे माथों के बोसे ले, ये हमारे हाथों पे प्यार करें, ये हमारे सीनों से लगे। कभी मैं और आप अपने बच्चों को अपने सीने से लगाया होता, मेरे और आपने, तो ये बच्चे वही रिजल्ट मुझे और आपको दे रहे होते। हमने कभी बच्चों को बसा नहीं लिया, प्यार ने, हाँ बचपन में खेलते कूदते अगर देखा, कभी प्यार आया उठाया, लेकिन अल्लाह अकबर, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अपने बच्चों को गैदरिंग दें, दोस्ताना माहौल होना चाहिए, नमाजों के वक्त में प्यार और मोहब्बत से मस्जिद की तरफ लेकर आए, जहां दुनिया के हवाले से मैं और आप इन बच्चों के मुस्तकबिल के रोशन होने के हवाले से मैं और आप ख्याल करते, तो मेरे भाई ये दुनिया वक्ती है, जितनी भी इस दुनिया को मैं और आप रोशन कर ले, आखिरत अगर मेरी और आपकी तारीख हो गई तो कुछ भी मुझे और आपको ना मिल सके। ये बच्चे गिरबान पकड़ेंगे कल क़यामत के दिन कि अल्लाह हमने जुर्म किया, हम जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। अगरचे ये बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कहेंगे कि अल्लाह ये हमारे माँ बाप करे, इन्होंने हमारी तालीम और हमारी तरबियत का ख्याल नहीं किया। खुद नमाज पढ़ते थे, खुद मिसवाक करते थे, खुद शलवार को टखनों से ऊपर रखते थे, खुद अल्लाह लिल्लाह और फिल्लाह में लगे रहते थे, लेकिन इन्होंने हमारा ख्याल नहीं किया। कोई अगर कहे अपनी बच्चियों को पर्दा कराओ, पूरा लिबास पहना हो, माए कहती है अभी हमारी बच्चियां छोटी हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इन छोटे बच्चों को तालीम दिया करते थे। हजरत हसन रदी अल्लाह तआला को अभी 4 साल की उम्र गए, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर अपनी गोद में बिठाया हुआ गए, अपने सीने से लगाया हुआ गए, हजरत हसन को दुआ सिखा रहे गए। 4 साल उम्र गए। कितनी साल, कितनी बेटा आपकी कितनी उम्र है, कितनी है इनकी उम्र? उठिए बेटा, माशाअल्लाह उठिए। ये उम्र अल्लाह ने एक बनाए, बैठो। ये उम्र थी हजरत हसन की, 4 साल का ये बच्चा है। हजरत हसन की भी 4 साल उम्र थी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी गोदी में उन्हें बिठाया है और हजरत हसन से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेटा जब वितर के लिए खड़े हो तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत वाफिनी फीमन आफैत वतवल्लनी फीमन तवल्लैत वबारिक ली फीमा आतैत वक़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्ना तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। हजरत हसन को 4 साल की उम्र थी, अल्लाह के नबी ने ये दुआ सिखाई। हजरत हसन ने इस नन्ही मुन्नी उम्र में ये पूरी दुआ बरज़बान याद कर ली, अपने सीने में महफूज कर ली। ये तालीम का वक्त है, ये तरबियत का वक्त है। आज इस बचपन में अगर मैं और आप किसी बच्चे को सिखा देंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह किसी पत्थर पर नक्श बना दिए जाएं। पत्थर टूट जाता है लेकिन पत्थर पे बने हुए नक्श जो है वो इधर उधर नहीं होते। पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं लेकिन उस पत्थर पे लिखी हुई तहरीर जो है वो नहीं मिटती है। अल्लाह अकबर। आज ये बच्चे इस उम्र के अंदर पत्थर के मानिंद है। आज जो कुछ इनके ऊपर लिख देंगे मरते दम तक अल्लाह अकबर इनकी जिंदगियों से वो चीज नहीं निकल पाएगी। और जब बड़े हो जाए, नाफरमान हो जाए, तो फिर लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ कर दीजिए। उस वक्त जब वक्त था उस वक्त कोशिश नहीं की, इनकी पैदाइश से पहले दुआएं नहीं की आपने, पैदा होने के बाद अंबिया की तालीम पर अमल नहीं किया, ना दुआ की, ना तालीम दी, ना तरबियत की, ना माहौल दिया, कुछ भी नहीं। जब ये बच्चे हमारे हाथों से निकल गए, अब मौलवी साहब दम कर दीजिए, कोई दुआ बता दीजिए, और अगर कोई बदअकीदा होता है तो मौलवी साहब कोई तावीज दे दीजिए, हमारे बच्चे हमारे नाफरमान हो गए। फिर ये बदअकीदगियां आम हो जाती है। आज वक्त है, ये बच्चे अगर हमारे हाथों से निकल गए फिर ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिवाय मैं और आप अपने माथों को पीटेंगे या अपने सर दीवार पे मारेंगे। आज मैंने और आपने अगर इनका ख्याल नहीं, हजरत लुकमान कहते हैं अपनी आवाज को आहिस्ता रखो, इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। बेटा अपने गालों को, अपने रुखसारों को फुलाने की तुझे जरूरत नहीं है।
अपनी गर्दन में टेढ़पन तुझे लाने की जरूरत नहीं, अपनी गर्दनों में ये अल्लाह अकबर जो सरिया पड़ा हुआ है, इस सरिये को तूने नरम करना है। ये हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को नसीहत की है। मैं और आप अपने बच्चों में नरमियां पैदा करते हैं, अखलाक सिखाते हैं। हम तो ये कहते हैं बेटा अगर कोई तेरी तुझे मारे, कोई एक गाली दे, 10 गालियां देकर आना, हम यहां पर मौजूद हैं। मां बाप भी ऐसे आस्तीन चढ़ा लेते, हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई है? हाय हाय, कैसे इन बच्चों की मैं और आप तरबियत कर रहे हैं। बाहर अगर कोई जुल्म और ज्यादती उस बच्चे पर हुई है, उस बच्चे को कहो बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है आपसे भी कोई गलती हुई होगी, आपको मस्जिद में किसी ने डांटा है, बेटा आपसे कोई गलती हुई होगी, आप देखो अपने हालात को, उसको प्यार से मोहब्बत से, ये नहीं कि उससे जाके लड़ना शुरू कर दो। जब लड़ोगे तो फिर ये बच्चा सारी जिंदगी लड़ता रहेगा, एक दूसरे के फिर हम खून के प्यासे होंगे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नसीहतें फरमाई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अब बच्चों को नसीहतें फरमा रहे गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते गए, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे लाल। किसको नसीहत की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने? नबी अलैहिस्सलाम किसको नसीहत कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को नसीहत कर रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा जब तुम खाना खाओ तो किस तरह खाना खाना। लेकिन ये सारी चीजें मुझ में और आप में पहले बदरजे अतम होनी चाहिए। मुझे पता हो कैसे खाना है, कैसे पीना है, बर्तन कैसे हो, हमारा हाथ कौन सा हो, क्या जुमले मैंने और आपने अदा कर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जब खाना खाने का इरादा करो तो मेरा बेटा ये करना, कुल समिल्ला, अल्लाह का नाम लेके खाओ, वकुल बियमीनिक, अपने सीधे हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, बर्तन है, थाल है, आपके लिए मस्जिद ने या किसी दावत में आप एहतिमाम के साथ गए हुए, तसले में 4-5 आदमी बैठे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, अपने आगे से खाना है। ये नहीं कि बर्तन के अंदर इधर उधर हाथ मारने हैं, नहीं, आगे से खाओ। कौन सिखा रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी है, नबियों के इमाम है। जहां अल्लाह के रसूल ने नमाजें सिखाई, रोजे सिखाए, हज सिखाया, जिहाद सिखाया, अल्लाह अकबर, हमारी और आपके दुनिया में आने के मकसद को, इबादत को वो खोल खोल कर बयान किया, वहां अल्लाह के रसूल इन छोटे छोटे बच्चों को तालीम दे रहे। और ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बीवी उम्मे सलमा का पिछले शौहर से बेटा है, जो अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया हुआ है। अल्लाह के रसूल उस छोटे मासूम बच्चे को कहते, बेटा सीधे हाथ से अपने आगे से बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। मैं अपने बच्चों को तालीम देता हूं? नहीं, क्योंकि मैं खुद उल्टे हाथ से पेप्सी पी रहा होता हूं। मैं और आप खुद जो है दुनिया की मशरूबात जो है वो उल्टे हाथ से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम खुद अमल नहीं करें। हमने कभी बिस्मिल्लाह, आज दोपहर का खाना आप लोगों ने खाया था, मुझे नहीं बल्कि अपने आप को बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया था। शायद 10% भी लोग ऐसे नहीं होंगे। बस खाना आया और दमादम बस उस प्लेट को निमटाने की और मुझे और आपकी फिक्र होगी कि कोई और ना ले जाए। इसमें से बोटियां मैंने समेटनी है, इसमें से सारी तरी मैंने लेनी है, अगर मीठा है तो इसके अंदर जो लवाजमात इसमें नट बोल्ट डले हुए वो सब के सब मैंने अपने आप इधर समेटने हैं। मेरी और आपकी फिक्र ये होती है ना। बिस्मिल्लाह कितने लोगों ने पढ़ी? पूछे अपने आप। जब मैं और आप बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खा रहे तो ये बच्चे किस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे? और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जब तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे उस खाने में से अल्लाह बरकतों को उठा लेगा। अल्लाह अकबर, शैतान तुम्हारे खाने में दाखिल हो जाता है, बरकतें उठ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो। अगर इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो अल्लाह के महबूब फरमाते दरमियान में ये कह लिया करो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिर। शैतान ने जो खाया है वो कै कर देगा। जो बरकतें उसने समेटी है वो सब की सब बरकतें जो है आपको दोबारा मिल जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह पढ़ने ना भूलो। हर काम के इब्तिदा में अपने बच्चों को मैंने आपने ये तालीम देनी है कि अल्लाह के रसूल का फरमान है लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अक्तउ व अब्तर। दुनिया का कोई भी काम हो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह मैंने आपने अदा करनी। हम और आप पढ़ते, हम गाड़ी पे सवार होते हैं, कभी बिस्मिल्लाह पढ़ी?
हम अपने घरों में दरवाजों को कुंडी लगाते हैं, कभी बिस्मिल्लाह पढ़ी? यहां तक कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बैतुल खला में जाते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस बिस्मिल्लाह पढ़कर उल्टा कदम अल्लाहु अकबर बैतुल खला में रखा। मैंने और आपने अगर दुआ याद की, बड़ी अच्छी बात है, दुआ याद नहीं तो फिर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के बैतुल खला में दाखिल हो। शैतान, शर, मुसीबतें, आफतें, ये सब के सब अल्लाह अकबर, इन फितनों से, जिन्नात से और इन तमाम चीजों से मैं और आप महफूज हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर मैं और आप बैतुल खला में जाएंगे, फिर यही नतीजा होता है। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस नहीं पढ़ी, फिर हम बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। अल्लाह अकबर, नतीजा ये आता है फिर मौलवियों के पास बैठ के कहते हैं जी जिन्नात का असर हो गया, जादू हो गया, फलां हो गया, ये हो गया। सारी जिंदगी वो मौलवी भी मुझे और आपको वहमी बना देता है, अल्लाह से हटा के वो उस मौलवी पर एतकाद मेरा और आपका हो जाता है। आपने देखा होगा कि लोग दरवाजों पे दम कराने के लिए खड़े हो। कल भी एक साहब मेरे पास आए, कल लगा मेरा बच्चा बीमार है, मोहल्ले का ही था, मस्जिद का नमाजी। कल लगे वो उसके दांत आ रहे हैं, बीमार चल रहा है बच्चा। लगा मसला क्या है? कल लगे जी वो उल्टियां लगी हुई हैं, मोशन लगे हुए। ये कोई नई बात है? हम अपने बचपन से सुनते हुए आए, फला फला दवाई इस्तेमाल करो बच्चा कमजोर हो जाता है। कहने लगे मैंने फला मौलवी साहब का कहा था अपनी बीवी को मौलवी साहब के पास ले जाओ, उनसे दम करा के आ जाओ। अरे मैंने कहा भाई ये सारी चीजें दमों से नहीं जाती, दम कराना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। पैगंबर अपने बच्चों और नवासों को दम करते थे। आसमान से जिब्रील आके अल्लाह के रसूल को दम करता था। हजरत आयशा अल्लाह अकबर कुरान की आयात पढ़ती और नबी का हाथ नबी के जिस्म और सीने पर फेरती थी बरकत के लिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी बीमारी है, उसकी तकलीफ है, उसकी जड़ को पकड़ के उसका इलाज कीजिए। और माँ बाप के जुमलों में अल्लाह ने जो तासीर रखी है वो मौलवी के जुमलों में कभी तासीर नहीं हो सकती। खुद दम कीजिए, अल्लाह का कलाम पढ़ के उस पर फूकिए, अल्लाह उसको शिफा देगा। हम जब बचपन से उन बच्चों को गोदी में उठा के आस्थानों पर और मौलवियों के दरवाजों पर लेकर जाएंगे, वो फिर लोग अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के कुरान की तरफ ये बच्चे कभी भी नहीं आएंगे। होश के नाखून लेने हैं इन बच्चों के अकायद को। आज इस नन्ही मुन्नी उम्र में हमने अल्लाह अकबर बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की तो मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। कैसे अल्लाह के रसूल ने इन बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत का ख्याल किया है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आया और कहता अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जिना की इजाजत लेने आया हूं। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ने जैसी देखा ना कि ये जिना की इजाजत लेने आया, सहाबा इकराम गुस्से हो गए। सहाबा से बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम बड़े तहम्मुल मिजाज थे, बड़े हलीम थे, बड़े बुर्दबार थे। और ऐसे ही मुझे और आपको होना चाहिए। ये नबी की सुन्नत सिर्फ कुर्बानी के मौके पर ये नहीं है कि 4-4 लाख के जानवर अपने दरवाजों पे खड़े होके और जनाब किसी ने मुहर्रम के अंदर अपने सीनों को पीटा है। आज हम जानवरों को लाके दमादम अपने घरों के दरवाजों पे ढोल, तमाशे, म्यूजिक, ये सारी चीजों को अपनाए। सिर्फ कुर्बानी के मौके पर जानवरों को ज़िबा करना ये नबी की सुन्नत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की ये भी तो सुन्नतें हैं। ये अल्लाह के रसूल की अदाएं कि बच्चों से प्यार किया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने कितने साल अल्लाह के रसूल की खिदमत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारना तो दूर की बात है, अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम ने कभी मुझे डांटा भी नहीं है। सीने से लगा के रखा, मुझसे प्यार किया है। ये नौजवान आया और कहता है अल्लाह के रसूल मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा गुस्से हो गए। अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा तहम्मुल का मुज़ाकरा करो। महबूब ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी मुझे ये बता, ऐ नौजवान, ऐ मेरे बच्चे ये बता, अगर कोई औरत तेरी मां के साथ जिना करे तेरी गैरत इजाजत देगी? कहा अल्लाह के रसूल नहीं। तेरी बेटी के साथ जिना करे तेरी गैरत इजाजत देगी? कहा नहीं। तेरी बहन, तेरी फूफी, खाला किसी के साथ जिना करे तेरी गैरत इजाजत देगी? कहा अल्लाह के रसूल कतई इजाजत नहीं देगी।
महबूब ने फरमाया जिस औरत से तू जिना की इजाजत मांग लगा गए, हो सकता है वो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की फूफी हो, उसके रिश्तेदार कैसे अल्लाह अकबर इजाजत देंगे, उनकी गैरतें कैसे इजाजत देंगी। वो सहाबी वो नौजवान कहता गए अल्लाह के नबी बात मेरे समझ में आ गई। देखे ना कितना प्यारा अंदाज, ना डांटा ना झिड़का। आज मैं और आप अगर किसी को कोई जुर्म करते हुए देखते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं, अल्लाह अकबर, उसका नतीजा ये आता है कि हमारे मार और हमारी पीट की वजह से हमारे बच्चे हड धर्म हो जाते हैं, वो जिद पे आ जाते हैं और फिर वो जनाब दीन से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और मेरे साहबी तेरी बात समझ में आ गई? कहा जी अल्लाह के रसूल, मैं जब जिस औरत से जिना की इजाजत मांग रहा हूं वो किसी की बहन, बेटी, फूफी, खाला या किसी की मां होगी। अल्लाह के रसूल मुझे समझ में आ गई, इंशाअल्लाह अब जिना करना तो दूर की बात है, मेरे दिल में ये सोच भी अब पैदा नहीं होगी कि अल्लाह अकबर मैं कोई इतना बड़ा जुर्म करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अपने करीब बुलाया, शफकत का मुजाहिरा फरमाया, उसके सर पर या उसके कांधे या कमर पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते शफकत फरमाया, हाथ रखा और अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से खिताब किया, मुखातिब हुए, दुआ मांगी, अल्लाहु अकबर इलाहुल आलमीन अल्लाहुम्मा गफिर ज़ंबा। आप अंदाज देखें, मैं और आप अपनी औलादों के लिए कभी दुआ करते? कभी की? ये तो करते हैं अल्लाह मेरे बच्चे को नौकरी दे दे, अल्लाह मेरे बच्चे का तरक्की कर दे, इम्तिहान में दुनिया में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे नंबर आ जाए, दुनिया। लेकिन नबी दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा गफिर ज़ंबा, अल्लाह इसने गुनाह से तौबा की है, मैं इसके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा दे, व ताहिर कल्बा, मैं दुआ करता हूं इसके दिल को पाकीज़ा बना दे। नबी फरमाते गए फहस्सिन फरजा, जहां मैं इसके गुनाहों की माफी का अल्लाह तुझसे सवाल करता हूं, इसकी दिल की पाकीज़गी के तुझसे दुआएं करता हूं, वहां अल्लाह मैं तुझसे यह भी कहता हूं फहस्सिन फरजा, अल्लाह तू इस नौजवान की शर्मगाह की हिफाजत फरमा। ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम अपने बच्चों को प्यार से अपने करीब बुलाएं, उनके सरों पे हाथ रखे, उनके कांधों को थपके, उनको हौसला दे और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह हमारे बच्चे हैं, इनसे अगर कोई गुनाह हो गया माफ फरमा दे, इनके दिलों को पाकीज़ा फरमा दे। अल्लाह हम इनके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी शर्मगाहों की जहां इनके जाहिर हैं, अल्लाह तो इनके बातिन की भी हिफाजत फरमा। नबी दुआएं करते थे बच्चों के लिए, अपनी जुर्रियात के लिए, अपनी औलादों के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिशें की। मेरा और आपका क्या किरदार है, अल्लाहु अकबर, मैं और आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। कल क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नम में मुजरिमीन को डालेगा, जहां पत्थरों को डाल के अल्लाह जहन्नम की आग को सुलगाएगा, वहां अल्लाह मुजरिमीन के लिए अल्लाह जहन्नम को तैयार किया हुआ है। अल्लाह ने जहन्नम की दहकती हुई आग में मुजरिमीन को डालना है। ये जहन्नम के ईंधन है, अल्लाह की नाराजगी और उसकी बगावत पर मुश्तमिल काम करने वाले। इसीलिए रब्बुल आलमीन कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप ही की फिक्र नहीं करना बल्कि अपनी अहले खाना की भी तुमने फिक्र करनी है। 7 साल का ये बच्चा हो जाए, प्यार से मोहब्बत से बड़े शफकत भरे अंदाज में उनकी तरबियत करनी है। दुनिया की लालचें अगर उन्हें देना पड़े, लालच देके, इनाम देके, दुनिया के सुरखाब, अल्लाह अकबर, दुनिया की रौनकें दिखाकर उनको नमाज की तरफ आमादा करने की कोशिश करनी है। और पैगंबर इस्लाम फरमाते जब 7 साल से 8, 9, 10
3 साल उनकी तुमने प्यार मोहब्बत से तरबियत करनी है। अब 10 साल के हो गए, अब अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो अब अगर कोई सजा भी उन्हें देना पड़े ना, तो प्यार मोहब्बत के साथ साथ छोटी मोटी सजा देके उनसे नमाज की अदायगी करवानी है। ये हमें हमारी शरीयत ये बता। लेकिन तरबियत के 3 साल दिए, आप खुद नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे भी घर में नहीं पढ़ते, अल्लाह ने आपको उम्र के किसी एक ऐसे हिस्से में नमाज की तौफीक दे दी है कि आप 40 साल के हो गए, घर में तो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, आप नमाज की तरफ अब आ गए, तो अब आप ये चाहें कि ये मेरे घर का माहौल यकदम पलट जाएगा, सब अच्छाई की तरफ आ जाएंगे। आपकी सोच तो होनी चाहिए, उसके लिए कोशिश भी होनी चाहिए, लेकिन यकदम आप अपने घर पर सख्तियां शुरू कर दे, हमारी शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती। अल्लाह अकबर, प्यार से मोहब्बत से बड़ी खूबसूरती के साथ अपने बच्चों को मैंने आपने माहौल देना है। मर्दों को हुक्म है कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, औरतें घरों में पढ़ेंगी, लेकिन अल्लाह के रसूल फर्द नमाज मस्जिद में अदा करते थे, लेकिन नफली नमाजें अल्लाह के महबूब अपने घर में, यहां तक कि सुन्नत मुअक्कदा या रात की नमाजें या दीगर नमाजें बहुत सी अल्लाह के रसूल अपने घर में इसलिए भी अदा करते थे कि बच्चों की तरबियत होगी, बच्चों की तालीम के लिए, उनको एक माहौल देने के लिए। आप देखते हैं ना, जब मैं और आप या घर की औरतें घर में नमाज पढ़ती हैं तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे सजदे में जाना अभी आता नहीं, सजदा कैसे करते हैं, टांगों को कैसे मोड़ते हैं, पैरों और हाथों को जमीन पे कैसे रखते हैं, बच्चों को अपनी टांगे फोल्ड करना नहीं आ रही। अगरचे ये छोटी उम्र में अपने पैरों पर ही और पैरों को मोड़ के ये चलते थे, लेकिन अभी अगर उनको सजदा करवाया जाए तो उनको ये सजदे की कैफियत और हैयत इनको अंदाजा नहीं हो रहा, प्रैक्टिस नहीं है। आपको वो सजदे में जाते हुए देखते हैं तो ये छोटे बच्चे ये भी जमीन पे उल्टे लेट जाते हैं, चूंकि हमें सजदे में जाते हुए देख रहे हैं, हमें सजदे में इन्होंने जाते हुए देखा, वो हमारी नकल कर रहे हैं, हमारी कॉपी कर रहे। आप अंदाजा कर ले कि यही उम्र है इन बच्चों की सिखाने की, इन्हें समझाने की, इन्हें पढ़ाने की और इनको कुट्टियों में बिठाने की। और अल्लाह से फिर दुआ भी करें, अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमा, अल्लाह हम सबको कामयाब व कामरानियां अता फरमा दे, अल्लाह हम सबको अपनी रदा और रिजवान नसीब फरमा दे। और अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह तूने हमें दीन की समझ अता फरमाई है, अल्लाह हमें मजीद पुख्तगियां हमें नसीब फरमा दे और हमारे बच्चों को भी दीन की समझ के साथ साथ अमली मैदान में उतार दे। इंशाअल्लाह इसी में मेरी और आपकी कामयाबी और कामरानी है। यकीनी हम सबको आज फिक्र करनी है, अगर फिक्र करेंगे रिजल्ट आएगा, फिक्र नहीं करेंगे फिर अल्लाह ना करे बड़ा भयानक मेरा और इन बच्चों का अंजाम होगा और उसके जिम्मेदार मैं और आप होंगे। जिम्मेदार और निगरान अगर अल्लाह ने मुझे और आपको बनाया है तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो जिम्मेदार, वो निगरान जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सके, अल्लाह उनको जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। जन्नत ऐसे लोगों पर हराम कर दी जाती है। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। मैं उलमा का, मैं बुजुर्गों को, उलमा को कुछ शायद मेरे से कोई तारुफ नहीं है, मैं सबके लिए दुआगो हूँ, मशकूर हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अल्लाह आप लोगों को खैर और इसकी खैर पर, बरक़ात पर मुश्तमिल इसकी जज़ा अता फरमाए, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।